Hello friends, I'm Ruchika. Today we are going to discuss about elements of cost accounting. As we know that cost accounting ascertains the total cost per unit cost, or it helps to ascertain the selling price. There are various elements of cost. Basically, when we talk about the cost element, there are three elements of cost: material cost, labor cost and expenses. Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing, or cost is a measurement in monetary terms of amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services. So elements of cost, how do we compose a cost? कोई भी प्रोडक्ट है वो तीन चीज़ों से मिलके बनेगा: मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. Material contribute maximum part of production. If we take an example of a notebook, the material contribute 80%, like paper contribute 80% for manufacturing a notebook. Similarly, when we talk about manufacturing of a pen, plastic contributes the major part. So it is the material which constitute the major part of production, followed by labor cost and expenses. So three main elements of cost are material, labor and expenses. Further, these are classified into direct and indirect. Material also classified as direct material and indirect material. Labor is also classified as direct labor or indirect labor. Expenses also direct labor, direct expenses and indirect expenses. And indirect expenses are further classified: factory expenses, office and administration expenses, and selling and distribution. First, we need to clear about what is direct and what is indirect. Any cost, any expenses which is directly related to a cost center or a cost unit, means which we can directly allocate to a given product, is called material cost. Example, अगर हम नोटबुक की बात करें, जो पेपर यूज़ किया गया है उसमें वो डायरेक्ट मटेरियल है. जो उसमें पिन्स यूज़ की गई हैं, स्टेपलराइज किया गया है उसको, या उसमें गम यूज़ की गई है, वो है इनडायरेक्ट. सिमिलरली अगर लेबर की बात करें, जो डायरेक्ट लेबर उसमें इन्वॉल्व है नोटबुक बनाने में, वो डायरेक्ट, मगर जो वॉचमैन है, गेट कीपर है, या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर. सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो इनडायरेक्ट है, हिडन है, विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्शन, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. Material cost. As I told you earlier, material constitute the major part of cost. Cost of material of any nature used for the purpose of product or services, like cost of procurement, freight, carriage inward, trade discount, these all are example of material cost. Material cost is further classified as direct material and indirect material. Direct material means जो प्रोडक्ट को देखते ही समझ आ जाता है. जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो फर्नीचर में जो वुड है, जो लकड़ी है, वो डायरेक्ट मटेरियल है, मगर फर्नीचर के अंदर जो नेल, गम, फेविकोल, ये सब यूज़ किया गया है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है. डायरेक्ट मटेरियल मीन्स डायरेक्टली एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, form a major part of production, purchased for a specific job or product, and raw material used for one process becomes the direct material for another. Like अगर हम बात करते हैं माचिस की डिब्बी की, मैच बॉक्स की, मैच बॉक्स फॉर कीपिंग मैच स्टिक्स, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया. डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल और प्रोडक्टिव मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट को. अब बात करते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट यूनिट क्या होती है. Cost center is regarded as a segment or area of activity for which costs are accumulated. मतलब अगर आप प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर ए प्रोसेस में है तो वो क्या हो गया उसका कॉस्ट सेंटर. इसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन सेंटर पे हैं तो वो उसका प्रोडक्शन सेंटर. बेसिकली कॉस्ट सेंटर इज द एरिया और सेगमेंट जहाँ पे एक्टिविटी की जा रही है. मगर कॉस्ट यूनिट का मीनिंग होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज
रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन, मतलब एक यूनिट, एक प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है वो कॉस्ट यूनिट होगी। तो मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल को बोला जाता है प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल और प्रोडक्टिव मटेरियल। सिमिलरली लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है कि जो हम अपनी लेबर को या अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं, वेदर दैट एम्प्लॉयज़ इज अ परमानेंट नेचर और टेम्पररी, हम उसको सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं, दैट कम्स अंडर द लेबर कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एलोकेट की जाएगी वो डायरेक्ट लेबर, और जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं की जाती किसी कॉस्ट सेंटर को वो इनडायरेक्ट लेबर। अगर कोई पर्सन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है और वो उसका काम है कि कार के जो पार्ट्स हैं वो असेंबल करना या उसकी पॉलिशिंग करना, तो वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया। मगर अगर कोई पर्सन स्टोर कीपर है, मेंटेनेंस कर रहा है रिकॉर्ड्स की, या वॉचमैन है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, प्राइम कॉस्ट लेबर और प्रोडक्टिव लेबर। ये सब टर्म्स हम बाद में यूज करने वाले हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस, इसके अलावा मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंसेस बोले जाते हैं। एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, एलोकेट किए जा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। These are also known as chargeable expenses, process expenses, prime cost expenses and productive expenses. Example, cost of railway freight, royalty paid, research expenditure, fee paid to surveyor या आर्किटेक्ट्स को। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते किसी भी जॉब के साथ। अब बात आती है ओवरहेड्स। देखिए, सबसे पहले हमने 3 एलिमेंट्स की बात करी कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मगर जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मींस तीनों ही अगर इनडायरेक्ट नेचर के हम ऐड कर देते हैं तो वो ओवरहेड बन जाते हैं। तो ओवरहेड का मीनिंग है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट ओवरहेड्स। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे ओवरहेड 200 रुपीज़ हैं, मटेरियल है 80 रुपीज़ का, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर 70 रुपीज़ की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 रुपीज़ की, तो टोटल ओवरहेड्स हो गए हमारे 200। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ओवरहेड और ऑन कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ओवरहेड्स है बेसिकली एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कि आपने एक्चुअल में 200 लगाए, 2000 लगाए। अगर आप एक्चुअल अमाउंट की बात करते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो है ओवरहेड्स। मगर अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को परसेंटेज में काउंट कर लेते हैं कोई बेस बना के, तो वो हो जाता है ऑन कॉस्ट। देखिए, मटेरियल 40,000, लेबर 20,000, दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट होगी 60,000। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स इनडायरेक्ट नेचर के हैं 15,000। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट, या इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में या वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो जो ये 40,000, 20,000, इसमें देखिए मटेरियल और लेबर ये डायरेक्ट नेचर के हैं, तो ये ओवरहेड्स का पार्ट नहीं है। मगर फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, दीज आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट, these are the part of overhead because these are indirect in nature। तो अब देखिए ये एक्चुअल अमाउंट है 15,000 या ये 15,000, तो ये हुआ ओवरहेड। मगर अगर हम फैक्ट्री ऑन कॉस्ट निकालते हैं और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का हमने बेस लिया लेबर, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,000, लेबर 20,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 75% ऑन वेजेस। तो ये क्या हुई, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। सिमिलरली अगर हम ऑफिस ऑन कॉस्ट की बात करते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड 15,000, वर्क्स कॉस्ट 75,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो ये हुई हमारी ऑन कॉस्ट। I hope this is clear to you all. Thank you.